In the name of Allah, the extremely compassionate, the extremely merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And a very good afternoon. We have gathered here today to inaugurate the training of the Trainer Certificate course for Geriatric Caregiver. This training is organized by the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, National Institute of Social Defense, Regional Resources and Training Center, under the Center for the Study of Social Change in collaboration with Anjuman Islam and training partner Topiwala National Medical College and Nair Hospital. We begin today's program by glorifying the Almighty. I call upon the teacher of Allana Junior College, Mr. Shabir Hira, to recite a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Thank you very much, Mr. Shabir. As a tradition at Anjuman Islam, we will play the Anjuman anthem called the Tarane Anjuman. Anjuman, 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 बुलबुले हम हैं और ये हमारा चमन, हमारा चमन, बुलबुले हम हैं और ये हमारा चमन, हमारा चमन. अंजुमन, 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 अंजुमन. हिंद की आबरू शान इस्लाम की शम्मा जलती है यहाँ प्यार के नाम की शम्मा जलती है यहाँ प्यार के नाम की. हमको हाजत नहीं कोई इन आम की
आरज़ू है फकत इल्म के जाम की, इल्म के जाम की। हमारा चमन, हमारा चमन। अंजुमन, 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 अंजुमन। इल्म दौलत है, अज़मत है इंसान की, इल्म इज्जत है हिंदू मुसलमान की। इज्जत है हिंदू मुसलमान की। इल्म राहत है दीन और ईमान की, इल्म ज़ीनत है हर दिल की, हर जान की। इल्म ज़ीनत है हर दिल की, हर जान की। बुलबुले हम हैं और ये हमारा चमन, हमारा चमन। अंजुमन, 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 अंजुमन। हमारी महफिल में लोग बिना बुलाए आते हैं, हमारी महफिल में लोग बिना बुलाए आते हैं, क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं पलखें बिछाई जाती हैं। I request the President of Anjuman Islam, Dr. Zahir Qazi, to escort Srimati Kishori Pednekar, the Honorable Mayor of Mumbai, onto the dais. I request Deputy Mayor Suhas Wadnekar to kindly come on the dais. I request Advocate Nirmala Samant to kindly come on the dais. Dr. Ramesh Podkar, sometime, okay. Dr. Girish Radhyaksha, kindly come on the dais, sir. किस कदर आपकी आमद का यकीन है दिल को, किस कदर आपकी आमद का यकीन है दिल को, लब खुले जाते हैं इजहार तशक्कुर के लिए। We will now have a short floral presentation. I request the President of Anjuman Islam, Dr. Zahir Qazi, to present a bouquet of flowers and a token of appreciation to Srimati Kishori Pednekar, the Honorable Mayor of Mumbai. दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, महफिल में रौनक आती है आपके आने से। Dr. Zahir Qazi and the Honorable Mayor of Mumbai both belong to Goa. They are both from Goa. Thank you very much, Madam, for being with us. I once again request the President of Anjuman Islam to present a bouquet of flowers and token of appreciation to Mr. Suhas Wadekar, the Deputy Mayor of Mumbai. A huge round of applause. आप आए तो बहार लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। I request the President of Anjuman Islam to present a token of love and appreciation to Advocate Nirmala Samantji, the project head of CSSC. Thank you, Madam. Thank you very much. I request the President of Anjuman Islam, Dr. Zahir Qazi,
to present a token of love and appreciation to Dr. Girish Raj Diaksha. Thank you very much. Thank you so much, sir. I request Advocate Nirmala Samant Madam, who's the project head of CSSC, to present a token of love and appreciation on her behalf to Srimati Kishori Pednekar, the Honorable Mayor of Mumbai. Thank you, madam. Thank you very much for being with us today. It's indeed our pleasure. Please have a seat, please. We will begin with the formal program now. We have amidst us Advocate Nirmala Samant Prabhavalkar. She is an advocate of Mumbai High Court, a very charming personality. She has been the professor of law in Siddharth College. She was elected as the municipal councillor in 1992 for 5 years in Mumbai. She is elected as the chairperson of the Education Committee. She has been elected as mayor of Mumbai for the year 94-95. She was the first full-term elected woman mayor in 100 years of history of Mumbai Municipal Corporation. And the legacy continues after that. She has contested the parliamentary elections from Northwest District, Mumbai as Congress candidate. Ma'am, एक last point. She has been the chairperson of Maharashtra State Commission for Mumbai 2002 to 2004. Over to this wonderful lady, Advocate Nirmala Samant ji. आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम के लिए जब हमने दावत दी हमारी मुंबई की महापौर मैडम किशोरीताई पेडनेकर जी को, तो उन्होंने बिना किसी विलंब के हमारे इस प्रोग्राम के इनविटेशन को मान्य किया और यहाँ पे आगमन हुआ, उनकी तशरीफ़ हो गई यहाँ पे। इसके लिए मैं हमारे सेंटर ऑफ स्टडी ऑफ सोशल चेंज RRTC और अंजुमन इस्लाम के ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री काजी साहब के तरफ से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मैडम, थैंक यू वेरी मच। इस प्रोग्राम को अगर डॉक्टर काजी साहब ने नहीं हमें मान्यता दी होती तो शायद हम इतने अच्छे हेरिटेज बिल्डिंग में और अंजुमन, जिसको मैंने पूछा गार्डन ऑफ फ्लावर्स, इस तरह का अपने एटमॉस्फेयर इस 148 इयर्स के ये इमारत को पूरा हो रहा है, इतना हिस्टोरिक मोमेंट हम शायद विटनेस नहीं कर पाते थे। थैंक यू डॉक्टर काजी वेरी मच फॉर दिस काइंड कोऑपरेशन। हमारे डेप्यूटी मेयर साहब भी यहाँ पे उपस्थित है, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये एक अपनापन होता है कि हमें बहुत एम्बैरेसिंग लगा प्रोटोकॉल तो उन्होंने नहीं, ये किशोरीताई के साथ एक अपना फंक्शन समझ के यहाँ पे आ गए, तो तुमचे मी खूप खूप आभारी आहे, धन्यवाद। सुहास हम कलीगी हैं, डॉक्टर राजाध्यक्ष जो नायर हॉस्पिटल के हैं और वो एक बड़ा विभाग संभालते हैं जनरल मेडिसिन का, और वो बाद में अपनी बातें आपके साथ रखने वाले हैं। तो उनके लिए भी ये इतनी व्यस्तता होने के बाद उनका सेंटिनरी फंक्शन है नायर हॉस्पिटल का, वो छोड़ के थोड़ा उसको करके यहाँ पे वो आए हैं, इसलिए मैं उनके आभारी है। डॉक्टर भारमल ने उनको ये दिया, परमिशन दिया, डॉक्टर धारप ने उनको परमिशन दिया, तो मेरी तरफ से उनको बोल दीजिएगा थैंक यू वेरी मच करके। थोड़ी देर में हमारे डॉक्टर पोद्दार आने वाले हैं, ही इज़ आवर ऑनररी सेक्रेटरी, ही विल कम आफ्टर सम टाइम। डॉक्टर भोजराज, वो हम अभी यहाँ पे नहीं हैं, वो मित्र है काजी साहब के, फैकल्टीज़ है, तो डेफिनेटली उन्होंने मुझे कहा इस कार्यक्रम के लिए मेरे तरफ से आप
बात कर दीजिए। तो डॉक्टर भोजराज जी नेक्स्ट टाइम रहेंगे हमारे फंक्शन में। और मोडक साहब, आपने हमें बहुत ही ये ऑल दैट कोऑर्डिनेशन यू कुड डू, थैंक यू वेरी मच मिस्टर मोडक। सलमा लोखंडवाला जी, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि काफ़ी कोऑर्डिनेशन हमारा रहा। आप ट्रस्टीज एंड डायरेक्टर्स, आप सभी ट्रस्टीज एंड डायरेक्टर्स, सबको, स्टाफ को हमारा नमस्ते। ऐसा है कि मेरे पास 10 मिनट है, लेकिन आप जो ट्रेनीज है वो यहाँ पे सारी स्कूल के साथ आए हैं, तो अगर मैं आपका नाम नहीं लूँगी तो मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती होगी। तो आप सभी मोहतरमा, राइट वर्ड ना, मोहतरमा, ठीक है ना, मोहतरमा, ऑनरेबल मैडम, सभी का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। जब मैं बांद्रा से कॉरपोरेटर थी तब मैं अच्छा उर्दू बोल लेती थी, लेकिन उसको काफ़ी अरसे हो गए तो मैं थोड़ी भूल गई हूँ। अभी थोड़ी स्टार्ट करूँगी प्रैक्टिस। एनीवे, तो थैंक यू वेरी मच। और सारे जो स्टाफ है, ट्रेनीज है, आपके हम लोग बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार है। अभी ये जो कोर्स किस लिए है उसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड देती हूँ, ताकि आप सभी को पता चले कि हमारे इस कोर्स के लिए ऑनरेबल मेयर मैडम आ गई है। इसका मतलब ये कोर्स का एक अनन्य साधारण ऐसा महत्व है। तो आपको पता है कि हमारे भारतवर्ष में जो सीनियर सिटीजन्स की आबादी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज चाइना और जापान, ये खास करके जापान है, ये वृद्धों का देश करके जाना माना जाता है। वहाँ पे सेंटेनरियंस, 100 साल जीना कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी आयु आजकल बढ़ गई है। और साथ में चाइना में भी बहुत ही आयुमान बढ़ रहा है, और उसके पीछे हमारा देश है। वी विल बी द थर्ड कंट्री in the world. We are going to have the highest population of senior citizens. इसको हम लोग डेमोग्राफी की बात करते हैं। तो डेमोग्राफी में आने वाले कुछ सालों में हम लोग 20 करोड़ रहेंगे। 20 करोड़ की अगर देश की आबादी अगर सीनियर सिटीजन है, तो क्या हम उन सीनियर सिटीजन्स के जो चैलेंजेस है वो फेस करने के लिए रेडी है क्या? तो नहीं है, लेकिन स्लोली रेडी हो रहे हैं। तो हमको इस तरह से लगा कि सीनियर सिटीजन्स की केयर गिवर की एक मैन पावर फोर्स होना धीरे धीरे बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग इतने एडवांस कंट्रीज नहीं है कि सीनियर सिटीजन्स को पूरा जो है विदेश में मिलता है। यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज में एवरीथिंग दे गेट बिकॉज दे आर हाईएस्ट टैक्स पेयर्स। लेकिन हमारे यहाँ पे तो जितने अगर 20 करोड़ की आबादी है तो उसमें 15 करोड़ जो लोग हैं वो गाँव में रहते हैं, जो गरीब तबके के हैं। तो उनको तो रोजमर्रा के खाने के इतने प्रॉब्लम्स है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि सीनियर सिटीजन के केयर गिवर की बड़ी मुश्किल होने वाले। तो इस चैलेंज को हमने सभी को स्वीकार करना चाहिए। और एक साथ हमारे तरफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है कि लोगों को काम नहीं है, और कोविड में तो ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है, तो डेफिनेटली इट हैज अफेक्टेड। तो ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि स्किल करके जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, या तो जो कम सीखे हैं, या तो एडिक्वेटली अलग अलग प्रोग्राम्स है हमारे कम सीखने वालों का है, ग्रेजुएट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। आफ्टर सम टाइम विल बी डूइंग दिस कोर्स फॉर डॉक्टर्स ऑल्सो। तो इस तरह से हम लोग एक एक जो टप्पा है वो आगे आगे करते जा रहे हैं। तो जरूरी ये है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, या तो जिनको केयर गिवर में कोर्स करना है, पढ़ना है, उनके लिए ट्रेनिंग हो जाए। और सीनियर सिटीजन्स के लिए आज देखने वाला अगर कोई नहीं है, वो अबेंडेंड है, वो विडो है, वो विडोर है, अकेले रहते हैं, तो या तो फैमिली में है लेकिन बच्चे लोग विदेश गए हैं, या तो काम के लिए बाहर जाते हैं, तो दे आर अलोन एट होम। तो उनकी सेवा करने के लिए अगर प्रशिक्षित अगर हमको केयर गिवर मिलते हैं, तो हम उस फोर्स को तैयार करना, ये हमारा मकसद है। सलमा जी को मैंने कहा था कि मराठी में एक कहावत है, थेंबे थेंबे तड़े साचे, वन सिंगल ड्रॉप मेक्स अ होल ओशन। मैं अगर बोलूँगी मेरे एक ड्रॉप से क्या होगा, तो मैं एक ड्रॉप डालूंगी तो काफी लोग डालेंगे, तभी ये ओशन होगा। तो दिस वर्क इज इक्विवेलेंट टू पुटिंग one drop into the ocean, so that we are ready to take up the challenges of senior citizens, and we are ready to give all that which is required for the manpower crisis बहुत है। और ये कोर्स है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। उसके डिटेल्स के बारे में डॉक्टर हमारे बात करेंगे। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज का जो सितंबर मंथ है वो वर्ल्ड में डिमेंशिया एंड अल्जाइमर के बारे में डिस्कशन के लिए माना जा रहा है। अगर आप गूगल में देखेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड मंथ ऑफ सितंबर
फॉर अल्जाइमर एंड डिमेंशिया केयर के लिए पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अंजुमन और हम मिलकर आज इसके बारे में कुछ तो जिक्र कर रहे हैं। और 21 सितंबर इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड डिमेंशिया डे। डिमेंशिया तो आपको मालूम है कि क्या खाना खाया लोगों को 60 के बाद याद नहीं आता है, खाना खाया कि नहीं, कुछ डेली रूटीन्स हम भूल जाते हैं। और ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये बीमारी क्यूरेबल है, इसके ऊपर ये ऑप्शंस है, लेकिन वो होनी नहीं चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? यंग एज से हमको इस तरह से ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कोई भी डिमेंशिया का शिकार न हो, कोई भी पार्किंसन का शिकार न हो, कोई भी अल्जाइमर का शिकार न हो। ये हम कर सकते हैं ताकि आने वाली चीज़ों को अगर बचपन से मालूम हो, देन ओनली वी कैन टेक केयर। तो एक हमारी थोड़ी सी एक ये जो पहल है, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती उसके ऊपर। ये कोर्स का जो डिटेल है कि ये कब शुरू होगा, के बारे में 10 दिन का वक्त हमें थोड़ा सा मॉड्यूल को ठीक ठाक करने को लगेगा। मैं ये हमारी सारी बच्चियों को कहती हूँ जो हमारे यहाँ बीकेसी में ट्रेनिंग होगा, उसका एड्रेस, उसका सिलेबस, उसकी तारीख और किस तरह से होगा वो मैं आपको इमीडिएटली, आपके ईमेल्स है हमारे पास, तो विल कोऑर्डिनेट, वी विल सिट विद नायर हॉस्पिटल एंड हम लोग वो दैट विल बी फ्रॉम आवर साइड। तो आप उसका आज टेंशन मत लीजिए कि हमको सिलेबस नहीं मिला, हमारे पास कोई ये फैकल्टीज नहीं है। एवरीथिंग यू विल गेट आफ्टर 10 days बिकॉज वी रिक्वायर टू वर्क इट आउट प्रॉपरली। एंड हम लोग इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि 1 मंथ के कोर्स में आपको भी लगेगा कि हमको इस जो अंजुमन ने जो पहल की है, इतना सब ये किया, तो दैट विल बी, हमको बेनिफिट हुआ, हमको कुछ तो मालूम हुआ और हम आगे जाके दूसरों को भी ट्रेन कर सकते हैं। इस तरह की हमारा मकसद रहेगा। इसलिए आप हमको 10 दिन दीजिए सो दैट विल बी रेडी। और जो एड्रेस है वो बीकेसी में या तो बैंड्रा इसमें, वो भी मैं आपके साथ एड्रेस शेयर करूंगी, टाइम एंड ऑल दैट। एंड आई विश दैट वी विल मीट देयर इन बीकेसी आफ्टर 10 days। धन्यवाद। Thank you, madam, for that beautiful welcome and for that crisp introduction of the program. है लोग वही जहां में अच्छे, है लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। Our next speaker for today is Dr. Girish Rajadhyaksha. He is the professor of medicine, head of oncology department, hypertension clinic. He has been associated with TN Medical College and BYL Nair Hospital, Mumbai. He has been the president of Maharashtra Association of Physicians. He is the vice president of IMA Mumbai branch, honorary secretary general, Maharashtra Association of Physicians. He is the chairperson of IMA AMS Mumbai branch. He is the president of Staff Society, TNMC. He has written more than 50 publications in national and international journals. He is the principal investor for many international drug trials. Over to Dr. Girish. गुड आफ्टरनून। मंच पर उपस्थित महानीय व्यक्ति और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ हमारी मेयर मैडम है, पेडनेकर मैडम, और पेडनेकर मैडम का मैंने जो काम देखा है, लास्ट ईयर जब भी कोविड का पैंडेमिक आया और 20 अप्रैल को नायर हॉस्पिटल को पूरी तरह से कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित किया गया। हमारे पास 1100 पेशेंट्स थे और ये 1100 पेशेंट ऐसे वैसे नहीं थे, सभी ऑक्सीजन रिक्वायरिंग पेशेंट्स थे, तो सब क्रिटिकल पेशेंट्स थे। और मैं कहता हूं कि मेडिसिन के विभाग के जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर सब जिम्मेदारी आई थी। बाकी के डॉक्टर्स डर के, काफी डॉक्टर्स घर में बैठे थे, लेकिन मेयर मैडम को मैंने देखा है बिना झिझक के, ऑफ कोर्स वो मास्क वगैरह सब करती थी, लेकिन वो बिना झिझक के जाती थी वार्ड्स में। और हमारे हॉस्पिटल में इतनी बार आई मैडम और उन्होंने गाइड किया और उन्होंने हमको हौसला दिलाया कि आप डरो मत, हम पूरी बीएमसी आपके पीछे है। हमको जो दवाइयाँ लगी, कितनी दवाई इतनी महंगी थी, हजारों रुपए की एक एक इंजेक्शन आती थी, लेकिन मैडम ने बोला कि हम सब आपको फ्री में उपलब्ध कराएंगे।
जो हजारों पेशेंट का हम आज इलाज कर सके और अभी भी कर रहे हैं, वो इनके जैसे जो लीडर्स हैं, इसके लिए बहुत कम लीडर्स ऐसे देखे मैंने कि जो बिना झिझक के उधर जाते। तो वो पहली बात। दूसरी बात, आपके जो प्रेसिडेंट साहब काजी सर है, उन्होंने जब भी बताया तभी मैंने सोचा कि ये इधर गोवा का डोमिनेंस है, हम सब गोवा के लोग ही ज्यादा बैठे हैं इधर। तो मैं निर्मला सामंत प्रभावलकर जी मैडम का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इसमें इन्वॉल्व किया। लास्ट ईयर तो मैंने काफी इंटरव्यूज दिए टीवी पे, हेलो डॉक्टर ये वो, और उसमें से एक इन्होंने देखा और उनको इंप्रेशन लगा अच्छा, तो उन्होंने बोला आप अच्छी तरह से समझा सकते हैं लोगों को, जो मासेस को। हमारे डॉक्टर्स में काफी लोग ऐसे थे जो नॉलेज उनका बहुत रहता है, लेकिन जो सिखाने के वक्त आता है तो अपना लेवल उनके लेवल तक आएगा नहीं, तो वो ट्रांसमिशन नॉलेज का होगा नहीं। तो उन्होंने वो देखा रहेगा मुझ में वो कुछ। तो मुझे टीचिंग मुझे बहुत पहले से अच्छा लगता है, इसके लिए मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। तो ये जो उन्होंने सोचा है कि हमारा पॉपुलेशन अभी काफी लोग सीनियर सिटीजन्स हो रहे हैं, और जो सीनियर सिटीजन के साथ ये जेरियाट्रिक के ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, जेरियाट्रिक मेडिसिन, वो जो डेवलप हो रही है वेस्टर्न कंट्रीज में, हमारे इधर भी अभी चालू हो गई है। क्योंकि इनके अलग अलग प्रॉब्लम्स रहते हैं, किसी को स्ट्रोक होता है, किसी को किडनी की खराबी होती है, किसी और कुछ फ्रैक्चर होता है। तो इनको देखने के लिए ऐसे लोग चाहिए कि वो सिर्फ नॉलेजेबल होके फायदा नहीं है, उनके दिन में उनके लिए एक अच्छी तरह से एक अफेक्शन चाहिए, और वो जब तक नहीं, सिंपैथी, एम्पैथी, अफेक्शन, वो जब तक नहीं है वो अच्छी तरह से केयर नहीं दे सकती। तो इन्होंने ऐसा सोचा, और ऐसी एक टीम ट्रेन करेगी, उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी वजह से वो किधर भी जाके ऐसे हजारों लाखों लोग जो है उनकी मदद कर सके, और वो भी कुछ कमा सके अपने फैमिली के लिए और खुद के लिए। तो वो बहुत अच्छा उद्देश्य वे लोग कर रहे हैं, और हमने सोचा, हमारे भारमल सर ने बोला कि आप भी उनको जरा मदद कीजिए, तो मैंने बोला कि यस वी विल डू इट, एंड वी विल डू अ वेरी वेरी गुड एक्टिविटी लाइक दिस ऑफ ट्रेनिंग दिस पीपल। तो मैं अगेन आप सबका धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने इधर इन्वॉल्व किया, और हमारी तरफ से, और हमारे नायर हॉस्पिटल, जो मैं कहना चाहता हूं कि नायर हॉस्पिटल 1921 में बना था, और इनका नाम है नेशनल मेडिकल कॉलेज, हमारा टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज। और नेशनल नाम इसके लिए है कि ये पहला मेडिकल कॉलेज है भारतवर्ष का जो इंडियन डॉक्टर्स ने आके बनाया है। ये सबको मालूम होना चाहिए कि भारतीय डॉक्टर्स ने, पहले की सभी जो मेडिकल कॉलेज थी वो ब्रिटिशों ने बनाई हुई, तो ये पहला मेडिकल कॉलेज ऐसा है कि भारतीय लोगों ने एक साथ आकर बनाया, और महात्मा गांधी खुद आए थे उसके उद्घाटन करने के लिए। तो उसको अभी 4 तारीख को 100 साल पूरे हो रहे हैं, और उसके लिए हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी और बाकी नेतागण, मैडम, सब लोग आ रहे हैं उस दिन। तो हम लोग काफी बिजी थे, लेकिन बोला आज ये फंक्शन करना जरूरी है, तो हमारे भारमल सर ने मुझे बोला कि आप जाओ उधर, तो मैं इसके लिए आया। मैं वापस एक बार धन्यवाद करता हूँ, और हमारे नायर हॉस्पिटल की तरफ से पूरा सहकार्य आपको आश्वस्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you very much, sir. Dhanyawad. We will now have Dr. Zahir Qazi, the President of Anjuman Islam, address the audience. Namaskar, Assalamu alaikum. Very good afternoon. I requested Sharmeen that she should not read out my biodata because time is very precious, and we have amidst us, हमारे दरमियान हमारे मुंबई सिटी की फर्स्ट लेडी, जिसे पहली खातून है, तो मैंने उनसे कहा कि आप बोलने से पहले थोड़ी गुफ्तगू मेरी भी आप सुन लीजिए। हम आपका यहाँ इस्तकबाल करते हैं इस करीमी लाइब्रेरी, इस अंजुमन इस्लाम में। क्योंकि आप पहली बार आए हैं तो सिर्फ मैं 2 मिनट अंजुमन की बात करूँगा, और फिर जो आज का टॉपिक है ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स। मैडम, ये इंस्टीट्यूशन को बने हुए 148 साल हुए, और इस इंस्टीट्यूशन को बनाने में इस भारतवर्ष के स्वतंत्र सेनानियों ने का बड़ा हिस्सा रहा। और जिस लाइब्रेरी में ये प्रोग्राम हो रहा है, करीमी लाइब्रेरी, यहाँ पे जंग आज़ादी के
स्ट्रैटेजीज बनाए जाते थे। और इसी लाइब्रेरी में बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारे ज़बानों में, मराठी में है, संस्कृत में है, पर्शियन में है, पश्तो में है, अरबिक में है, मराठी, गुजराती, मलयाली, इतने सारे अलग अलग भाषाओं की किताबें यहाँ मौजूद हैं। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आज के दौर में हम जो कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, सबको साथ ले चलने की, तो अंजुमन ने ये पहल 148 साल पहले की थी। और इस इंस्टीट्यूशन में इट इज वन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, सेक्युलर टू द कोर, वेयर देयर इज एवरीवन हु इज एन इंडियन प्रेजेंट हियर। हर तरह के भारतीय यहाँ मौजूद हैं। और आपने देखा होगा कि एक अभी हमारी बातचीत हो रही थी कि बम्बई शहर में या महाराष्ट्र में ट्रेनिंग द ट्रेनर्स फॉर जीरियाट्रिक्स, जीरियाट्रिक्स है जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, उस मेडिसिन को अंग्रेजी में जीरियाट्रिक्स कहा जाता है, जैसे बच्चों के लिए पीडियाट्रिक्स। ये हमारे मुल्क में हमारी बदकिस्मती है कि इतना ये चीज़ डेवलप नहीं हुई है। शायद ऐसा हो सकता है हमने हमारे सीनियर्स को, हमारे बुजुर्गों को की तरफ हमने नज़रअंदाज किया होगा। वी हैव इग्नोर्ड देम, वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम। बल्कि मेयर साहबा, वी हैड लॉट ऑफ प्रपोजल्स कमिंग फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज कि आप होम फॉर द एजेड टू टेक केयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स, उन्होंने हमको ऑफर दिए कि वहां से अंग्रेज यहाँ आके होम फॉर द एजेड में उनका यहाँ देखभाल की जाएगी। यानी उनके यहाँ भी प्रॉब्लम्स इतने चले, तो मैंने सोचा हम उनके लिए क्यों करें, हम अपने लिए क्यों ना करें। तो निर्मला सामंत जो पहले मेयर रह चुकी है और अंजुमन को बड़े करीब से जानती हैं, उन्होंने हमसे ये बात छेड़ी कि आप एक करोगे क्या। तो मैंने एक जवाब दिया उनको कि बम्बई शहर में और महाराष्ट्र में, बल्कि हिंदुस्तान में कुछ चीज़ें पहली बार जो हुई है वो अंजुमन से हुई हैं। ये मिड डे मील्स जो अभी कहा जाता है, 1874 में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट दिया जाता था, क्योंकि उस टाइम एक ही टाइम स्कूल हुआ करती थी। वो ब्रेकफास्ट से जाके अभी मिड डे मील हुआ। किंडरगार्टन कल्चर, केजी जो होता है, वो यहाँ से शुरू हुआ। और उस दौर में टाइपराइटर वाज द इनोवेशन, जैसा अभी कंप्यूटर है, तो उसको कहा जाता कमर्शियल इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट डोमेन में उस वक्त का बॉम्बे स्टेट, जो बहुत बड़ा स्टेट था, जिसमें गुजरात था, मध्य प्रदेश था, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके थे, कर्नाटका के थे, बहुत बड़ा स्टेट था बॉम्बे। उसमें सबसे पहला प्राइवेट डोमेन अंजुमन इस्लाम वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कमर्शियल इंस्टीट्यूट। तो बहुत सारे चीजें हमने पहले की हैं। हिंदुस्तान में पहली बार आर्टिजन स्कूल जो बनाई गई, वो साबू सिद्दीक में बनाई गई, मेरे ख्याल से 1936 में। सर्टिफिकेशन कोर्स जो आज बड़े जोर शोर से हम कह रहे हैं स्किल डेवलपमेंट, ये कब हुआ? 1937 में। और अंजुमन के बहुत सारे चीजें हैं जो हमने की है। आप देख रही होंगी मैडम कि यहाँ पे 80% सामाइन में हमारे बहनें या माएँ बैठी हैं। अंजुमन इस्लाम के 90% ऑफ आवर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ऑफ 97 इंस्टीट्यूशंस आर ऑल लेडीज। इधर वो डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हेड मिस्ट्रेसेस है। हमारे यहाँ 2 यतीम खाने हैं, अनाथालय ओनली फॉर गर्ल्स। आपल्याकडे एक इथं आहे, वर्सोवाला आहे, आणि दुसरा बंद गार्डन पुण्याला आहे। एंड मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किंवा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र गिव्स दॅम एक्रिडेशन ऑफ A ग्रेड। आणि इकडचे जे मुली असतात अनाथालयाचे, वी गेट देम मैरिड, वी गेट देम एजुकेटेड। तो एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री से हमारी 2 बार मुलाकात हुई, अंजुमन को बुलाते अक्सर। तो मैंने उनसे कहा, आपका जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अंजुमन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बसाओ, हम लड़कियों को भी बसा लेते हैं। तो बहुत सारे चीजें अंजुमन कर रहा है। और इस इन द नेशन बिल्डिंग
we have been always there. For all the calamities, whenever it happens, we are amongst the first to stand up. That goes to show how beautiful this country of ours is. I keep on telling to everyone that matters. I have traveled world over. There is no other country better than India for all kinds of people, minorities, and everyone, religious, linguistic. हिंदुस्तान जैसा मुल्क आपको कहीं नहीं मिलेगा. और हम चाहेंगे कि ये जो कोर्सेज शुरू हुए, ट्रेनर्स, एक महीने का कोर्स रहेगा नायर हॉस्पिटल में. ये पायलट प्रोजेक्ट होगा. इसके बाद ये इनिशियल 25 के जो लोग हैं, ये 25 जाके 100 होंगे, 100 जाके 150 होंगे. और मैडम मेयर ने इमीडिएटली ये कहा कि हम भी शुरू करना चाहते हैं अंजुमन के साथ मिलके. अंजुमन हमेशा इस काम में आगे रहेगा मैडम. और मैडम से वाबस्तगी और भी ज्यादा होनी चाहिए अंजुमन से, क्योंकि हम पड़ोसी हैं. आप पड़ोसन है मैडम हमारे, तो पड़ोसी का. तो आपने अंजुमन को देखा तो कहते हैं ना, आइए हम अंजुमन में बार बार. तो आपको बार बार हम बुलाते रहेंगे, आप आते रहिए. और हमारे यहाँ सुहास वाडकर साहब हैं जो डिप्टी मेयर है, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ऑफिशियल इनवाइट में शायद इनविटेशन न जाने के बावजूद भी आप तशरीफ लाए. दैट शोज हाउ हम्बल एंड ह्यूमिलिटी यू हैव. वी कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट. और मैं वक्त नहीं लूँगा, हमारी मेयर साहिबा से गुफ्तगू हम सुनेंगे अभी. ये वादे के साथ हम जो है इस मूवमेंट, इस जो आज कोर्स शुरू हुआ, इसको एक मूवमेंट बनाएंगे. और मैंने मेयर साहिबा से ये कहा कि बम्बई शहर और कोकन, ये 2 जगह एक पायलट प्रोजेक्ट लेंगे हम. फिर पूरे महाराष्ट्र में जाएंगे. फिर महाराष्ट्र इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट, पूरे देश के लिए एक डायरेक्शन देगा. तो हम सब मिलके करेंगे. और बड़ी तादाद में आप आए यहाँ पे विद सोशल डिस्टेंसिंग. अंजुमन इज नोन फॉर डिसिप्लिन. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू. और हर शख्स मास्क पहना हुआ है. मैंने भी मेरा मास्क यहाँ रखा है. मेरी दरख्वास्त है आप सभी से कि 3rd वेव न आने दे, इसलिए अंजुमन के टीचरों ने हर जगह ये मेहनत और कोशिश करनी होगी. आपने मुझे बर्दाश्त किया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार. जज़ाकल्लाह, शुक्रिया सर, थैंक यू. न पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, न पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखता है वो, संग दिल को मोम करने का हुनर रखता है वो. Our most awaited speech today by our chief guest, Mrs. Kishori Pendikar. She is the Honorable Mayor of Mumbai. She is a women's division organizer. Her participation in politics and social work is witnessed since the past 37 years. Since 2002, she has been elected as the corporator for 3 terms in 3 different wards. She has been the chairperson of Women and Child Welfare Committee, G South Ward Committee, and Architecture Committee. She has been a member of the Education Committee and of the Standing Committee till date. She has been awarded by the UNICEF for her outstanding work during the COVID phase. Also honored by the World Book of Records, London, for her outstanding performance in the epidemic. She has been awarded by multiple social organizations as a COVID warrior. Hats off to you, madam. Congratulations, and over to Mrs. Kishori Pendikar. सबको नमस्कार. आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन है. जिसके ऊपर कोई सोचते नहीं है, उसके ऊपर आज काम हो रहा है. मैं डॉक्टर हमारे नेटिव प्लेस के गोवा के काजी सर मेरे साथ, जिनको मैंने कहा कि अपने को ये कार्यक्रम को जाना है, और हमारे एडवोकेट डिप्टी मेयर सुहास वाडकर, जिनके साथ मैंने जब ये वो मेयर बनी मैडम निर्मला ताई, तभी मैं उनके साथ, हमारी एक बुजुर्ग थी
मंदाकिनी चौहान, उनके साथ मैं उनके बहुत ही कार्यक्रम किए। जब भी मुझे मैडम ने कहा कि आपको आना है तो मैंने बोला मैं आएगी। ऐसे हमारी प्रभावशाली निर्मला ताई, जिन्होंने नायर हॉस्पिटल में मेडिसिन जो डिपार्टमेंट रहते उनके साथ काम करना रहे, हमारे राज्याध्यक्ष सर और सब रिस्पेक्टेड बंधू आणि भगिनी। खरं म्हणजे हिंदी मराठी खरं म्हणजे हा कार्यक्रम अतिशय स्तुत्य उपक्रम आहे। कारण मी ज्या वेळेला लग्नाच्या आपण बोलणी करतो त्यावेळेला बऱ्याच वेळेला हल्ली मुलींचा विचार करण्याची सरणी ही बदलली आहे। म्हणजे मला धक्काच बसला ते ऐकून, ज्या वेळेला आम्ही एक स्थळ सुचवलं त्यावेळेला शिकलेली मुलगी होती, ओल्ड फर्नीचर किती आहे घरात हमें पता ही नहीं कि वो पेरेंट्स के लिए ओल्ड फर्नीचर बोल रही है। मैंने कहा मीन्स? तो बोले नहीं, उसमें घर में उसका चाचा है क्या, उसकी चाची है क्या, उसकी दादी है क्या, उसकी माँ और पिताजी। मैं बोले ये तो रिलेशन रहेगा ही ना, ऊपर से तो टपका नहीं है ना, तू भी कुछ तो रिलेशन में रहेगी ना घर में। तेरा भी भाई है तो वो आने वाली बहू है, तू क्या जिस घर में जन्म लिया है वही घर में हम बसते नहीं है, हम पैदे से ही दूसरे के घर जाने वाली लड़की है, दूसरे के घर, ये तो सुनते आया होते होते बड़े होते। मैं बोले आप ऐसी सोच कैसे रख सकती है? ओल्ड एज मीन्स अभी मेरा बच्चे का भाई शादी करेगी तो मेरे जो तरुण या जवान है उसमें तो होगी नहीं, क्योंकि बच्चे पैदा कब करना है उसका भी एक टाइम है, तो वो टाइम से होता है। तो हमारा ऑब्वियसली 45 या 50 के बाद ही अपने बच्चे की शादी होती है और वो उम्र तो हमेशा है। लेकिन अपने हर में किसी का धर्म किसी की जात नहीं, मैं सबको समान समझती हूँ, क्योंकि हर एक घर में अच्छे ही संस्कार मिलते। कोई माँ बाप ऐसा नहीं कहेगा जा तू डाकू बन जा, जा तू ये काम कर जा। वो होते हैं, वो अलग बात है, वो अलग माहौल होता है, उसमें अपना बच्चा जाता है, बच्ची जाती है तो बिगड़ जाती है। लेकिन कोई भी रईस हो या गरीब हो, वो कोई भी नहीं चाहता है कि अपना बच्चा कुछ गलत काम करे। लेकिन ऐसी सोच हो रही है, ये समाज के लिए घातक है, हर एक समाज के लिए घातक है। और ऐसे टाइम पे हम लोग ये सोचते हैं कि ऐसे टीचर हम तैयार करते हैं, जैसे आपने अभी कहा ना पेडियाट्रिक किया कहा जाए छोटे बच्चों, तो जेनेटिक मीन्स वो भी बच्चा ही होता है ना। हर 60 साल के बाद, जैसे हम बोलते हैं मराठी में साठी और बुद्धि नाटी हम कहते हैं ना, तो इसका मतलब है आस्ते आस्ते हम भी बच्चों के जैसा काम करना चालू करते। हमको जब भी हम तरुण जवान रहते तो अपने को ध्यान नहीं रहता है, भूख लगी है हम कुछ भी, लेकिन बच्चा जैसा खाना खाता है वैसा 60 साल के बाद हमारा भी खाना उठना बैठना वही हो जाता है। और उसमें जब भी कुछ प्रॉब्लम ओल्ड एज के लोगों को होता है तो उनका केयर करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, चलो घर में किसी को टाइम नहीं है लेकिन हम अच्छी केयर टेकर जो बोलते हैं वो रख सकते हैं। और उसका पूरा एजुकेशन या आपको जो कोर्स दिया जाएगा 1 महीने का, उसमें मुझे लगता है मैंने अभी जहीर साहब के साथ, डॉक्टर साहब के साथ मैंने खाली बात की है, मुझे वो प्रोग्राम का सिलेबस पता नहीं है, लेकिन मैं अनुमान लगा सकती है कि ये प्रोग्राम में 100% पहला हम उनके साथ प्यार कैसा करें, यही तो कमी है। और बाकी सब दुकान में मिल सकता है, लेकिन प्यार,
एक संस्कार, एक दूसरे के लिए इज्जत, ये बाजार में नहीं मिलती है। हर एक को अपनाना पड़ता है और अपने से ही कड़ी बनती जाती है। तो मुझे लगता है आपने बहुत ही अच्छा ये सब प्रोग्राम रखा है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि हम लोग एक एक कड़ी बनते जाएंगे और पूरे देश में इसकी उपलब्धता होनी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल के लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो ज़्यादा 15 दिन रख सकते, क्योंकि उसका जो पीरियड रहता है जो ब्रेन के ऊपर कुछ मेडिसिन का ये करने का, वो खत्म होने के बाद अंदरूनी शक्ति लाने के लिए उनकी खुद की पेशेंट जो रुग्ण बन जाते हैं उनकी खुद की ताकत, मन की ताकत ये होनी चाहिए। और हमेशा मैं तो कहती हूँ कि हर एक ऑर्गन्स अपना जो शरीर में है उसका हर एक को नाम है, लेकिन मन का नाम क्या है? किधर से मन बनता है? किधर है ऑर्गन? किधर है? वो तो है ही नहीं। लेकिन हार्ट और ब्रेन एक साथ काम करते उसको मन कहते, ऐसा मुझे लगता है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, क्योंकि वो अवयव है ही नहीं शरीर में, तो भी वही काम ज्यादा करता है। हम बोलते हैं ना मन की शक्ति, अरे मन की शक्ति मीन्स क्या? मन की शक्ति, हार्ट एक ही बार ये सोचेगा और ब्रेन भी वही सोचेगा, वो जो ताकत बन जाती है अंदरूनी वही मन होता है। और वो मन की ताकत आप लोग बनेंगे दूसरे के लिए, ये कितनी बड़ी बात है। खुद के लिए सब जीते हैं, खुद के लिए सब करते हैं, लेकिन दूसरे के लिए जीना, इसी का नाम है जिंदगी। और ये जिंदगी अपने को हंसते खेलते करना है। और आप लोग जब 1 महीने का ट्रेनिंग लेंगे तो जैसे एक हस्बैंड और वाइफ के बाद में जैसे हमारी पीढ़ी बढ़ती है वैसी पीढ़ी बनना चाहिए, क्योंकि आप ही पहले है ये मुंबई में, ये महाराष्ट्र में कि ऐसा ट्रेनिंग देने वाले मुझे लगता है आप ही पहले है। और आप पहले स्टूडेंट जब भी ये काम करेंगे तो मुझे लगता है जिन्होंने जहीर सर या हमारे खानल का राजाध्यक्ष या निर्मला ताई, उनका काम जो सोचा है उसका पूरा 100% इस्तेमाल होगा। और उन्होंने जो अपने ब्रदर है, या हमारे इधर ब्रदर बोलते, सिस्टर एंड ब्रदर हॉस्पिटल में, तो जैसे आप सिस्टर्स हैं वैसे ब्रदर को भी ट्रेनिंग देना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हेवी जेंट्स रहते तो इतनी ये नहीं है कि हम उठा सकते हैं उनको, ये करते, तो ब्रदर भी होना चाहिए, उनको भी ट्रेनिंग ये देना चाहिए। और ये स्किल वर्क है, इसमें हम हमारी कमाई भी कर सकते हैं, हमारे संसार के लिए पैसा भी जमा कर सकते हैं, क्योंकि हर एक की कीमत होती ही है। क्योंकि अपना टाइम और अपना जो आप क्वालिटी वर्क करेंगे उसकी तो कोई भी कीमत देंगे, और वो कीमत हर एक को जुड़ती जाएगी। तो मुझे लगता है जो ओल्ड एज आज भी 60 के लोग, मुझे मैं भी अभी 60 इयर्स हो गई है, तो मैं नहीं चाहती मैं 60 इयर्स है, मैं समझती मैं 18 है, क्योंकि मेरी सोच है, मैं सोच से एज का नाप लेती हूँ। मेरी सोच है और 10 साल मुझे दौड़ना है और 20 साल मुझे काम करना है, और ये काम करना है तो पहली मेरी सेहत अच्छी होनी चाहिए। मेरी सेहत अच्छी है तो मैं सब कर सकती है। इसलिए भगवान के पास भी क्या मांगना है, हीरे देव जड़ाओ वो कुछ नहीं चाहिए, मेरी सेहत अच्छा रखो, सब मैं मेरे पाँव के लेके आएगी। बोलते हैं ना जन्नत मिल सकती है हमें, लेकिन अपनी सेहत अच्छी होनी चाहिए। और आप दूसरे की सेहत करने का ट्रेनिंग आप ले रहे, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका जब भी सर्टिफिकेशन का कोर्स का प्रोग्राम रहेगा तो तभी भी मैं आएगी, आप बुलाओ या ना बुलाओ, लेकिन मैं आएगी, क्योंकि मुझे ये भी देखना है हर एक
पहले आते हैं जुड़ते, लेकिन बाद में आस्ते आस्ते कम भी होते। लेकिन मुझे नहीं लगता है अभी जो बैठे वो कोई भी ये कोर्स छोड़ के जाएंगे, क्योंकि ये कोर्स का अपने फैमिली में भी कितना उसका यूज होगा और आप कर सकते हैं। इसलिए जिन्होंने हमारे काजी सर, हमारे निर्मला ताई, पोद्दार सर अभी तक आए नहीं है ना, हमारे राज्याध्यक्ष सर, ये सब मिलके, और अभी उन्होंने कहा इधर सीईओ बैठे हैं, इधर ये बैठे, तो मैं सबको कहते हैं कि बहुत ही आप अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे काम में हमारी तरफ से कुछ मदद मीन्स कुछ और चाहिए एक फर्स्ट सिटीजन करके, तो मैं तैयार हूँ। मुझे ऐसे अच्छे काम में काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत लोग ट्रोल भी करते, अरे कितनी हाइट से क्या है, हाइट से क्या है। जिन्होंने इतिहास देखा है सब हाइट से कम है, तो मैं हाइट वेट नहीं जानती है, मैं एक ही जानती हूँ मुझे कैसा काम करना है। जो कर सकता है उनके साथ अच्छी तरह, नहीं कर सकता है तो उसके साथ भी अच्छा बर्ताव करता है तो ठीक, नहीं करता तो शिवसेना कैसा नहीं करता है मैं देखती हूँ। फिर एक काम करने का तरीका है, और लेडी वेडी कुछ नहीं होती है। अपने हर एक पर्सनालिटी में दो ये रहती है। जेंट्स लोग हैं तो ये कठोर नहीं होते, उनके मन में भी प्यार का जरा है, लेकिन पुरुष प्रधान देश है तो ठीक है। तो हम बहुत ही एकदम कोमलता नहीं है, हम भी दिखा सकते टाइम पे हम क्या है, और ऐसे ही होना चाहिए। नहीं तो बहुत लोग नहीं, मैं लेडी हूँ, क्यों लेडी हूँ, मैं नहीं कहती, मैं कहती चलो मैं तो सब काम करने को तैयार हूँ। रात को 2 बजे भी मुझे कोई फोन करता है, बोलते मुझे फोन पे काम होता है तो ठीक है ना, तो मैं खुद जाती हूँ, क्योंकि जिस पोजीशन में हूँ वो पोजीशन को न्याय देना चाहिए। मैं तो जाएगी गुच्छा हो ये जब भी ऐसे अपने हाथ मुझे बहुत से कुछ दिए वो लेके मैं चली गई, नहीं, जो पोजीशन है उसको न्याय दे, और वो देते देते अपने को प्रूव करो खुद को कि यस मैं ये काम कर सकती है। और मुझे लगता है आप सब करेंगे, एकदम अच्छा ट्रेनर बन के हर एक घर को खुशहाल करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात रखी। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। Thank you very much, madam, for being with us today and for that inspiring speech of yours. Thank you, madam. Thank you.
I call upon Dr. Abdullah Sheikh, Vice President of Anjuman Islam, to present the vote of thanks. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. On behalf of Regional Resource and Training Center, under Center for the Study of Social Change, in collaboration with Anjuman Islam and training partner, Tupiwala National and Medical College and Nair Hospital, training for the trainer certificate course for geriatric care giver. आज के इस बामकसद नशिस्त में बम्बई की मेयर श्रीमती किश्वरी पेडनेकर, ऑनरेबल मेयर ऑफ मुंबई, एडवोकेट सुहास वाडकर, डेप्यूटी मेयर, एडवोकेट निर्मला सामंत, फॉर्मर मेयर,
Dr. Girish Adhyaksh, Rajyaध्यक्ष, and our beloved President, Dr. Zahir Kazi, who has presided this program, our Joint Secretary, Advocate Aqil Hafiz, Executive Chairman, Janab Akhtar Rangunwala, our CEO, Colonel Modak, मैं तमाम प्रिंसिपल्स, स्टाफ मेंबर्स, तमाम हाजरीन का दिल की अमीक तरीन गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस बहुत अहम बामकसद प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार किया। आपकी शिरकत इस बात की गमाज है कि आपने बहुत ही दिलचस्पी से इस प्रोग्राम को सुना और उम्मीद करता हूं कि ये हमारी उन नस्लों के लिए जो इस मोड़ पर पहुंच जाती है कि जहां उनको बहुत ज़रूरत होती है, उनके लिए आपकी कारगुजारी उनकी मुस्तकबिल के लिए बहुत ही मदद व मामिन साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. Let us all rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। I request the guests for today to kindly accompany us for high tea in the President's cubicle. I request all the audience present here, thank you so much for being with us. There's a small snack hamper kept for you outside the library. Please take it with you before you leave. Thank you. At the ground, so I'm sorry, it's not outside the library, it's on the ground floor. Have a lovely evening. Jazakallah khair. Thank you.